بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 2 دیکھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کا پارٹ 3۔ عصر کے فوراً بعد رحمت بی بی نے ماموں کا دیا ہوا ایک تعویذ صحن میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو نالی میں بہا دیا۔ وہ مطمئن تھی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹی، گھر میں سناٹا تھا، وہ پرسکون نیند سو گئی۔ اچانک رات کو وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں جیسے بونچال سا آ گیا ہے۔ رومی کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ رات کی تاریکی میں وہ آوازیں بہت زور سے سنائی دے رہی تھیں۔ برتنوں کے زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے وہ دونوں لرز کر رہ گئی تھیں۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چینک کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھی، مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزری۔ رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے۔ فجر کی اذانیں ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات بھر جاگتے رہنے سے ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھیں کھلیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ رومی نے باتھ روم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ رات بھر برتن گرتے اور ٹوٹتے رہنے کی آوازیں ان دونوں ساس بہو نے سنی تھی، مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل اسی طرح صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ رومی کی ساس کو بتانے پر انہوں نے بھی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور رومی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں، مگر کمرے میں ایک برتن بھی نہیں ٹوٹا۔ رحمت بی بی نے کہا، امی، یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے اعصاب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں۔ رومی نے کہا، بیٹی تم فکر مت کرو، عمران کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس اعصاب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں، مگر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز آئی،
छत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मौजूद ही ना हो। इनकी आंखें नींद से बोझल थीं, इसलिए सुकून होने पर इन्हें नींद आ गई और सुबह होने पर ही वो बेदार हुई। नाश्ते से फारिग होकर रोमी छत पर डरते डरते गई। वो देखना चाहती थी कि रात को छत पर शादी की तकरीब मुनक्किद थी। ज़रूर छत पर फूल वगैरह पड़े हुए होंगे, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। शाम में तीसरा तावीज़ भी जला दिया गया। हस्बे मामूल रात में आसेब ने इन्हें डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से कभी खिड़की कभी दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़की को इतने ज़ोर से बजा रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी टूटकर गिर पड़ेंगे। खासी देर दरवाज़ा और खिड़की बजने के बाद खुद ही बजना बंद हो गए थे। रोज़ाना की तरह आज इन्हें आसेब से डर कम महसूस हुआ था। सुबह बेदार होने पर वो दोनों मामूल के काम में मशगूल हो गई थीं। शाम हुई और चौथा तावीज़ भी जला दिया गया। रात हुई और आसेब की मौजूदगी ज़ाहिर हो गई। वो इंतहाई बदसूरत शख्स था जो बंद दरवाजे के अंदर से कमरे में दाखिल हो गया था। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसे हमें क्या देख रहा है, चल यहाँ से दफ़ा हो जा, रहमत बीबी ने इसे गुस्से से देखते हुए कहा। इसने जवाब में कुछ कहा, मगर वो ऐसी ज़ुबान में था जो इनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बोलता रहा और रहमत बीबी वहाँ से इसे चले जाने को कहती रही। वो भी डीठ बना खड़ा रहा। जब रहमत बीबी ने इमरान के मामू की धमकी दी कि वो आकर इससे खूब निपटेगा, तो वो खामोशी से चला गया। इसे जाता देखकर सास और बहू दोनों खुश हो गईं। इन्हें इमरान के मामू की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। आसेब पर मामू की धमकी काम कर गई थी। वो इन्हें मज़ीद खौफज़दा करने की बजाय खामोशी से चला गया। वो इसके जाने पर सुकून से सो गई। शाम होने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। रोमी ने लपक कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इमरान के मामू खड़े थे। इसने इन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। मामू अंदर चले आए। दोनों ने 4 दिन की तफसील पूछी। इन पर जो गुजरी थी वो सब उन्होंने बयान कर दी। मेरा शक दुरुस्त था, वो बोले। कैसा शक? वो दोनों चौंकी। यही कि वो आसेब तुम्हें महज खौफज़दा करके भगाना चाहता था। वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मामू ने कहा। क्या ऐसा भी होता है? रोमी ने पूछा। हाँ बेटी, ये हकीकत है। जिन्नात के वजूद को हम जुटला नहीं सकते। जिन्नात की 2 किस्म हैं। एक किस्म शरीफ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि दूसरी किस्म जो शरीर होती है वो वीरान घरों और दरख्तों पर बसेरा करते हैं। वो इंसानों की कमज़ोरी से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए इन्हें खौफज़दा करने को डराते हैं। इंसानों को डराने के लिए ये मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेने में महारत रखते हैं। इनसे बचने का
आसान तरीका यही होता है कि इनसे डरा ना जाए। तुमने देखा, जब आसिफ से नहीं डरी तो वो मेरी सिर्फ धमकी देने पर फौरन ही दफ़ा हो गया। ये बात मैं तुम्हें इस वक्त भी बता सकता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आता और तुम किसी और ठग के पास चली जाती और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठती। मैंने तुम्हें 4 तवीज़ इसलिए दिए थे कि मेरे दिए तवीज़ चलाने से तुम में एतमाद पैदा हो, और तुमने आसिफ से डरना छोड़ दिया और धमकी भी दे दी। बस मैं यही चाहता था कि तुम आसिफ से डरना छोड़ दो और वो तुम्हें डराना छोड़ देगा। मामू ने कहा, हाँ मामू, वाकई हम तवीज़ चलाने से पहले आसिफ से बहुत खौफज़दा थे और इस घर को छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हम में एतमाद आ गया है और जब इसके डराने पर हम खौफज़दा नहीं होंगे तो वो भी डराना छोड़ देगा। रोमी ने खुश होते हुए कहा। रोमी की बात सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। मामू भी खुश थे कि वो दोनों जान चुकी हैं कि आसिफ पर काबू पाने के लिए डर और खौफ पर काबू पाना होगा। 2 हफ्ते इनके इम्तिहान के थे। आसिफ ने हिम्मत नहीं हारी थी। कई बार दोनों सास बहू को डराने की नाकाम कोशिश की और फिर खुद ही हार गया और इन्हें डराना और खौफज़दा करना छोड़ दिया। वो भी खुश थी कि इनकी ज़रा हिम्मत दिखाने से आसिफ को शिकस्त हो गई है। इमरान के वतन लौट आने तक वो खूब मज़े से इस घर में रही। मोहल्ले वाले भी इन पर हैरत करते थे कि वो दोनों औरतें होकर भी इस आसेब ज़दा घर में रह रही हैं, लेकिन ये राज वो दोनों ही जानती थी कि आसेब को किस तरह उन्होंने शिकस्त दी है। इमरान बैरूने मुल्क रहकर इतना कमा कर लौटा था कि इसने पहली फुर्सत में रहने के लिए एक अच्छा सा बंगला खरीद लिया था। इस घर से रुखसत होते वक्त सास ने पड़ोसियों को वो राज बता ही दिया था कि इस घर में जब भी कोई रहने के लिए आए वो आसेब के डर से भागने की बजाय इसे शिकस्त देकर शान से घर में रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।